ایک ایسا جانور جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ ہو جاتا ہے، اسی دنیا میں موجود ہے اور زیادہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے، اور بھی ملکوں میں ہوگا ایسا نہیں ہے، مگر یہاں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ سننا چاہیں گے؟ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کیجئے، اور جو جانتا ہو تو اس کو ہم کو بتا دے، اگر کسی کو معلوم ہے وہ بتا دے تو ہم سنائیں گے نہیں، بلکہ اسی سے ہم لوگ سن لیں گے۔ اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ نہیں، بلی کہاں کب اور کیسے پیدا ہوئی، چوہا کب کہاں کس لیے پیدا کیا گیا، خنزیر جس کو سور کہا جاتا ہے کب کہاں کس لیے پیدا کیا گیا، یہ دو تین بڑی قیمتی باتیں ہیں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر پہلے آپ یہ سنیے کہ ایک جانور ایسا ہے جو ایک سال نر رہتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسرے سال مادہ ہو جاتا ہے، خود بچہ پیدا کرتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب جانور ہے، آپ سننا چاہیں گے؟ یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کے لیے بڑی مفید ہے، بڑی فائدہ مند ہے، اور بہت برکت والی بھی چیز ہے۔ حیات الحیوان ایک بڑی مستند معتبر کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک جانور جس کا نام خرگوش ہے، کیا نام ہے؟ خرگوش، وہ ایک سال نر رہتا ہے اور وہی نر دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ آپ پالتے ہیں مگر شاید اس کے بارے میں آپ کو تجربہ نہیں ہوگا۔ ایک سال نر رہتا ہے، دوسرے سال مادہ ہو جاتا ہے، ایک سال بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسرے سال خود بچہ پیدا کرتا ہے، وہ جانور خرگوش۔ مگر اس کے کچھ فائدے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ سننا چاہتے ہو تو پیچھے کے لوگ صرف 2 منٹ کے لیے کرسی چھوڑ کر آگے کرسی پر آ جائیں۔ کرسی تو آپ کے لیے ہم نے ڈلوائی ہے، یہ ٹینٹ بک کیا ہے کمیٹی والوں نے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ، میں خلوص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ آگے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ یہ نہ سوچئے کہ مولانا نوری آگے بلا وجہ وقت ضائع کریں گے۔ انشاءاللہ آج ایسی ایک قیمتی بات بتا کے جاؤں گا مولانا یوسف رضا سنبھلی کی زبان میں کہ آپ کل پرسوں تک نہیں یاد رکھیں گے بلکہ برسوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرات گرامی، ایک جانور ہے جس کو خرگوش کہا جاتا ہے، وہ ایک سال نر رہتا ہے، دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ صاحب حیات الحیوان لکھتے ہیں کہ جس کے دانت میں درد رہتا ہو، جس کے داڑھ میں درد رہتا ہو اور وہ علاج کرا کے تھک چکا ہو، دوا کام نہ کر رہی ہو، کوئی حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہو، ڈاکٹروں کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ اس داڑھ کا درد کیسے جائے گا، صاحب حیات الحیوان لکھتے ہیں جس داڑھ میں درد ہے خرگوش کا، وہی داڑھ لے لیا جائے اور اس کے بعد اس کو دھاگے میں باندھ کے گلے میں پہن لیا جائے۔ صاحب حیات الحیوان لکھتے ہیں اس انسان کے داڑھ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ کبھی درد نہیں ہوگا، آپ کو اتنا عظیم
عظیم الشان نسخہ آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے، آپ کے اللہ نے عطا فرمایا ہے، پیدا کرنے والے مالک نے عطا فرمایا ہے، خلاق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ صاحب حیات الحیوان لکھتے ہیں کہ جس کو راشا کی بیماری ہو، راشا کہتے ہیں کپ کپی کو، جس کو راشا کی بیماری ہو، جس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو، جس کا خون گاڑھا ہو گیا ہو، جس کو غصہ جلدی آتا ہو، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جو دل کا کمزور ہو، دل کا مریض ہو، صاحب حیات الحیوان لکھتے ہیں وہ خرگوش کا گوشت کھایا کرو، اس کے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی، مائنڈ فریش رہے گا، بی پی معتدل رہے گا، دل کی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ ایک جانور ہے، فائدے اس کے اندر اللہ نے انیک رکھے ہیں۔ جانور ایک ہے، شے ایک ہے، چیز ایک ہے، اور فائدے انیک ہے۔ سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ بولو۔ ابھی تو میں بتاؤں گا چوہا کیوں پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد بلی کیسے پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، اس کے پیدا ہونے کی بھی کوئی خصوصیت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی راز ہے، کوئی معمہ ہے۔ حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب قبلہ نے میرے ذہن کو کشادہ کر دیا، ان کی تقریر سے میں نے استفادہ کیا، میرا ذہن کشادہ ہوا، بات مجھ کو یاد آ گئی، صفحے ذہن پر وہ بات آ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی کے اوپر تیر رہی تھی تو اس میں ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام تھا اوج بن انق۔ کیا نام تھا؟ اوج بن انق۔ اوج بن انق اس آدمی کو کہتے ہیں جو زمین سے نہیں ہوا میں چلنے و اڑنے والے پرندے کو پکڑتا تھا اور آسمان کی کرنوں سے بھون کے اس کا گوشت کھاتا تھا۔ اتنا لہیم سہیم آدمی تھا، اتنا لمبا تھا، طوفان نوح میں سب کچھ ختم ہو گیا، مگر اتنا پانی ہوا پوری دنیا ختم ہو گئی، مگر اس کے ٹخنے تک پانی تھا۔ ٹخنا جانتے ہو؟ یہ کہتے ہیں یہ گھٹنا ہو گیا، ٹخنا جو نیچے والی گانٹھ ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، اور اس کے ٹخنے تک پانی تھا۔ کہاں تک پانی تھا؟ ٹخنے تک۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کے ٹخنے تک پانی تھا، کتنا بڑا آدمی رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 ہاتھ کے لمبے تھے، اور وہ ہاتھ ان کا اپنا ہاتھ تھا، ہمارا ہاتھ نہیں، ہمارا ہاتھ تو ان کے انگلی کے برابر ہے۔ 7 ہاتھ کے لمبے تھے، اور 7 ہی ہاتھ کی ان کی لاٹھی تھی، عصا تھا۔ جب انہوں نے اچھل کر کے اپنے زمانے میں اوج بن انق کو مارا تھا تو اس کے ٹخنے پہ لگا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا لہیم سہیم آدمی رہا ہوگا۔ وہ اس طوفان میں بچ گیا تھا، مگر کشتی نوح میں کسی مصلحت کے تحت حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں سوار کیا تھا۔ کشتی کے اندر سارے اجناس جو دنیا میں موجود ہیں جمع تھے، لیکن خنزیر اس سے پہلے نہیں تھا، جس کو سور کہا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، بلی کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، چور کیا کہتے چوہے کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر جناب من آپ کو میں بتاؤں کہ اسی کشتی کے اندر شیر تھا۔ شیر کے اوپر پہلی بار بخار اگر لاحق ہوا ہے تو کشتی نوح کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ شیر تو سب کو کھا جائے گا، یا اللہ اس کا کوئی علاج فرما۔ رب نے فرمایا، میرے پیغمبر نوح گھبراؤ مت، اس کو کشتی میں سوار کرو، میں بخار مسلط کر دوں گا، یہ اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ تو کشتی نوح میں سب سے پہلے شیر کے اوپر بخار مسلط ہوا، اس سے پہلے اس کے اوپر بخار مسلط نہیں ہوا تھا۔ اب کشتی کے اندر سارے اجناس جمع تھی، چوہا نہیں تھا، شیطان بھی اسی میں موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر نوح اس کو سوار کر لو، اس کے سواری میں کوئی مصلحت ہے، اس کو سوار کر لیا گیا۔
अब जो है शैतान हाथी के पास गया। शैतान, गौर से सुनना वरना बात सर से निकल जाएगी। शैतान हाथी के पास गया और हाथी के उसने माथे पर, पेशानी पर हाथ फेरा तो उसको छींक आई और चूहे का जोड़ा पैदा हो गया। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोलिए। हाथी के नाक से चूहे का जोड़ा पैदा हुआ। अब आप देखिए, जानवर एक है हाथी, मगर उसके नाक से भी जानवर पैदा हो रहा है और उसके दूसरे मकाम से भी जानवर पैदा होगा। आप जरा गौर से सुनिएगा। चूहा पैदा हुआ तो चूहे के आदत 24 है। इसने काटना शुरू कर दिया, किताबों को भी काटता है, कपड़ों को भी काटता है और कश्ती नूह में कश्ती को काटना शुरू कर दिया। ये अपने आप का दुश्मन हुआ करता है। जब कश्ती को काटना शुरू किया तो कश्ती में खतरा लाहिक हुआ रहने वाले लोगों को, और उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती को चूहे काट रहे हैं और इसमें पानी भर गया तो कश्ती डूब जाएगी, इसका कोई इलाज फरमाइए। नूह पैगंबर ने अल्लाह की जनाब में अर्ज किया, मौला अगर चूहों ने कश्ती काट दिया, पानी भर गया, तो तेरे अजाब, पानी वाले अजाब से बचने के लिए तेरे हुक्म से इस कश्ती में आए, कश्ती भी डूब जाएगी, हम लोग भी मर जाएंगे। रब ने फरमाया, नूह घबराने की जरूरत नहीं है, जाओ शेर के करीब चले जाओ, उसके मत्थे पर, पेशानी पर हाथ फेरो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम शेर के पास गए, शेर के मत्थे पर हाथ फेरा, उसको छींक आई तो उसके नाक के दोनों सुराखों से बिल्ली के 2 जोड़े पैदा हो गए। सुभान अल्लाह बोलो। बिल्ली के 2 जोड़े, एक दाहिने नाक के सुराख से नर बिल्ला पैदा हुआ और बाएं नाक के सुराख से मादा बिल्ली पैदा हुई। बिल्ली का जोड़ा पैदा हो गया और जब ये जोड़े पैदा हुए, नूह पैगंबर ने हुक्म दिया, चूहों का ताक़ुब करो, उनकी देख रेख रखो। अब जैसे चूहे निकलते, बिल्ली फौरन दौड़ती, उनका ताक़ुब करती, फिर चूहे दुपक के छुप जाते, छुप जाते, जैसे निकलते बिल्ली दौड़ती, चूहे छुप जाते। अब कश्ती चूहों से बच गई, मगर उस कश्ती के अंदर ताफुन पैदा होने लगा, बदबू पैदा होने लगा, इसलिए कि इंसान भी, जानवर भी उसी में पैखाना पेशाब करते थे, बोलो बरास करते थे, तो उसकी वजह से बदबू पैदा होने लगी। लोग आए और कहा, अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, इस कश्ती के बदबू से हम लोग अब नहीं बच पाएंगे, अगर पानी के अजाब से हम बचने के लिए कश्ती में आए हैं तो कश्ती में जो बदबू पैदा हो रही है उसके बीमार होकर मर जाएंगे और बच नहीं पाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की जनाब में दुआ किया, मौला इससे भी नजात अता फरमा। रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर नूह, हाथी के पास चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला हाथी के पास जाकर क्या करूं? रब का हुक्म हुआ, जाओ हाथी के दुम को पकड़ के हिलाओ, झटका मारो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हाथी के पास आए, उसकी पूंछ को पकड़ के झटका मारा, 2 मरतबा झटका तो उसकी सुरीन से सुअर का जोड़ा पैदा हो गया। ऐ मुसलमानों, वही हाथी है जिसके नाक से चूहा पैदा हो रहा है और वही हाथी है जिसके सुरीन से खिंजीर पैदा हो रहा है। अल्लाह तबारक तआला की कुदरत देखिए, वो अल्लाह जो कभी मिट्टी के पुतले से आदम को बनाता है, वो अल्लाह जो कभी बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा फरमाता है, वो रब तबारक तआला कभी जानवर के नाक से दूसरा जानवर पैदा फरमाता है, वही रब तबारक तआला कभी जानवर की सुरीन से दूसरे जानवर को पैदा फरमाता है। खिंजीर पैदा हुआ, नूह पैगंबर ने हुक्म दिया, ऐ खिंजीर के जोड़े, कश्ती की गिलाजत को साफ कर डाल, कश्ती की गिलाजत को साफ करना शुरू कर दिया। ऐ मुसलमानों, आपने गौर किया, उसी कश्ती के अंदर आप जो है बिल्ली देखिए किससे पैदा हो रही है? शेर के नाक से पैदा हो रही है। चूहे किससे पैदा हो रहे हैं? हाथी के नाक से पैदा हो रहे हैं। खिंजीर किससे पैदा हो रहे हैं? हाथी के सुरीन से पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जो रब तबारक तआला बिल्ली को शेर के नाक से पैदा कर सकता है, जो रब तबारक तआला खिंजीर को हाथी के सुरीन से पैदा कर सकता है, वो रब तबारक तआला, जो रब तबारक तआला
चूजे को, मुर्गी के बच्चे को बगैर सुराख के ग़िज़ा पहुंचाता है, खाना और पानी अता फरमाता है। हिंदुस्तान के और दिल्ली के गरीब और मुसलमानों, ऑल इंडिया मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले मुसलमानों, तुम सुन लो और अपने नसीबे पे नाज करो, फख्र करो, जितना करो कम है कि जो रब तबारक ताला मुर्गी के अंडे के अंदर चूजे को ग़िज़ा अता करता है। आप अगर दिल्ली में रहोगे अल्लाह आपको ग़िज़ा यहाँ अता फरमाएगा, बंबई में रहोगे अल्लाह ग़िज़ा वही अता फरमाएगा। और जान माल का मुहाफिज रब तबारक ताला हो, जो लोग डराते हैं, खौफ दिलाते हैं कि मैं फला को मार दूंगा, वो सुन ले, हिंदुस्तान में अगर हुकूमत है तो किसी के बाप की नहीं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा पाक की है। आपको एक रुख दिखा करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुस्तान में आने वाले एक ऋषि मुनि ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर पानी बंद किया था, तो उस वक्त गरीब नवाज ने अपने गुलाम एक खादिम के जरिए से पानी को कूजे में भर लिया और पूरे अजमेर का पानी उसी कासे में आ गया। अब आपके पास पृथ्वीराज के मुहाफिजीन भी आ रहे हैं, उसके खुद्दाम भी आ रहे हैं, उसके चाहने वाले भी आ रहे हैं, उसके मुतक़िबीन भी आ रहे हैं। हुजूर पानी दे दीजिए, हुजूर पानी दे दीजिए। गरीब नवाज ने फरमाया अना सागर तुम्हारा है, पानी तुम उसमें से ले लो। कहा अना सागर सूख चुका है, आपके बुलाने पर अना सागर का पानी आ गया है। गरीब नवाज ने फरमाया अजमेर की पानियों से पानी ले लो। उन लोगों ने कहा अजमेर की पानियों का पानी आपके बुलाने पर आ चुका है। अरे मुसलमानों, आपने कुछ समझा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अजमेर की जमीन पृथ्वीराज की थी, अजमेर का पानी पृथ्वीराज का था, मगर हुकूमत गरीब नवाज का था। मगर हुकूमत मेरे गरीब नवाज की थी और आपने बुलाया, पानी चला आया। मैं तो कहता हूं गरीब नवाज ने पानी को हुक्म दिया, इसलिए सिर्फ पानी आया था। अगर मेरे आका गरीब नवाज अजमेर के दरख्तों को, अजमेर के दरिंदों को, अजमेर के परिंदों को, अजमेर की चहक के चरिंदों को, अजमेर के अजलास को आवाज देते तो सारी अजलास अजमेर मेरे आका गरीब नवाज की आवाज पे लब्बैक कहती हुई नजर आती। इसीलिए तो शायर लिखता है ख्वाजा हिंदू दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और मदद को रहमत परवरदिगार आती है, पुकारता है अगर कोई या गरीब नवाज, पुकारता है अगर कोई या गरीब नवाज। हजरात गिरामी, बात तो और बहुत सारी है। वो कश्ती कितनी गज लंबी थी, कितने गज चौड़ी थी, उसकी खुसूसियत कितनी थी, कितने साल में वो तैयार हुई, किस लकड़ी की बनी, कितने उसमें कील कांटे लगे थे, सारी तारीख याद है। मगर मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, हमारे मेहमानों का वक्त जाये हो जाएगा। हजरात गिरामी, सिर्फ एक वाकया तारीख के झरोखे से मैं दिखा के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, मगर उससे पेशतर कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। जिसने कहा या अली उसकी सारी मुश्किल टली, इसलिए कि हजरत अली का नाम भी इसमें आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा, आप लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? जो बेटा हलाली होगा वो मोहब्बत करेगा, जरूर करेगा। और बाकी आगे आप समझदार हैं खुद ही। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मदीने के आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से एक बार देखता है, अल्लाह ताला उसको एक हजर कुमरे का सवाब अता फरमाता है। तड़प पे बोलो, अरे माँ बाप के नाम पे बोल दो।
जिन लोगों ने हाथ उठाया अल्लाह इन्हें हाजी बना दे। अरे आमीन तो बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहाँ 40 आदमी होते हैं वहाँ एक अल्लाह का वली होता है, मुकर्रब बंदा होता है। न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए और हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। हजरत गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जो इंसान माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके कब्र पे जाता है, कब्र की जियारत करता है, अल्लाह ताला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अरे तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इंसान अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करता है, उसके इंतकाल के बाद उसके कब्र की जियारत फरिश्ते करते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे कब्र की जियारत दीदार फरिश्ते करें, बेटा नहीं आता है ना आए, रिश्तेदार नहीं आता है ना आए, अजीजो अकारिब नहीं आते हैं ना आए, अगर तुमने अपने माँ बाप के कब्र का दीदार किया, जियारत किया, तो इंशाअल्लाह फरमाने रसूल की रोशनी में फरिश्ते तुम्हारे कब्र का दीदार करेंगे, जियारत करेंगे। ऐ मुसलमानों, अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान सुबह उठ करके माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, अल्लाह उसके रोज़ी में बेपनाह बरकत अता करता है, बेपनाह बरकत अता करता है। अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे, उनके चेहरे का दीदार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे भी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। आज सब रोजी से परेशान हैं, खैर और बरकत के लिए परेशान हैं, उलझन टेंशन में मुब्तला है, मगर अल्लाह के नबी ने फार्मूला दे दिया, घबराओ मत, सुबह उठ के माँ के चेहरे का दीदार किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। ऐ मुसलमानों, जब बच्चा अपने माँ के पिस्तान से दूध की चिस्कियां लेता है, दूध पीता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक एक चिस्की के बदले में रब तबारक तआला उन बाहों को एक एक हज मकबूल का सवाब अता करता है। ऐ मुसलमानों, आप अपने माँ का कद्र करो, माँ की कद्र करो, उनका एहतराम किया करो, उनके मकाम व मरातिब को समझो, उनकी कद्र व मंजिलत को समझो। और मैं तो कहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, फरमाने रसूल की रोशनी में कहता हूँ, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो खाने काबा में तवाफ करते करते गिलाफे काबा को पकड़ के मरेगा तो जहन्नम में जाएगा, और अगर माँ बाप राजी हैं और अगर तो गलत जगह पर भी मर गया तब भी जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लिहाजा ऐ मुसलमानों, अपनी माओं से सच्ची मोहब्बत किया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनकी अजमत किया करो, उनकी ताज़ीम व तकरीम किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिरी हदीस में सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज इशा पढ़ा रहा होता, मेरी माँ की आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़ देता, अपनी माँ की आवाज पे लब्बैक कहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी माँ की आवाज पे लब्बैक कहता। तो कितने लोग हैं जो अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे? सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? सुभान अल्लाह। माँ से सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। अच्छा, इसमें ये दावा सच्चा है या खाली पिलपिला दावा आप लोग कर रहे हैं? सच्चा दावा है कि पिलपिला है? सच्चा दावा है। माशाअल्लाह। एक नारा लगाइए सैयद साहब, पहले इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए एक नारा लगाइए।
बात और मैं बताऊं, लोग कहते हैं औरतों को इस्लाम ने कोई मकाम नहीं दिया। आपने खुतबा से सुना होगा जन्नत में 70 हुरें मिलेंगी। तो हूर किसको मिलेगी? मर्दों को। किसको मिलेगी? मर्दों को। ये कारी साबिर निजामी साहब हैं, ये जानते हैं, इनके इलाके में मेरे बड़े प्रोग्राम होते हैं और एक एक घंटा नहीं 4-4 घंटा तकरीर होती है हज़रत। आप जानते हैं, वहां पर मैं तकरीर कर रहा था, एक शख्स ने सवाल किया, मौलाना साहब तकरीर के बाद आप ये बताइए कि हम लोगों को जन्नत में 70 हुरें मिलेंगी। मैंने कहा मिलेंगी। कहा ये तो मैंने बहुत सुना है। मैंने कहा आप क्या सुनना चाहते हो? कहा मेरी बीवी का क्या होगा। कहा आखिर बीवी कहाँ जाएगी, उसका कोटा कौन सा है, उसके बारे में भी तो कुछ बताइए। आप तो खाली मर्दों के बारे में बताते हो, तो औरतों का भी कुछ मकाम बताया करो। मैंने कहा मैं बताऊंगा। कहा कब बताओगे? मैंने कहा रात के प्रोग्राम में बता दूंगा। कहा ठीक है, उधार है? मैंने कहा हाँ उधार है, मगर मैं उधार रखता नहीं हूं, जल्द ही अदा कर दिया जाएगा। तो जब मैं प्रोग्राम में आया रात को, तो अपने तकरीर में मैंने कहा सुनो, मुझसे सवाल किया गया कि जन्नत में मर्दों को 70 हुरें मिलेंगी, तो मेरी औरत का क्या हाल होगा, वो कहाँ रहेगी, उसके लिए कौन सी जन्नत है? तो मैंने कहा सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अपने माँ बाप की वफादारी करेगा और शरीयत इस्लामिया पर अमल करेगा, अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 40 नहीं 50 नहीं 60 नहीं बल्कि 70 हुरें अता फरमाएगा। लेकिन जो अपने शौहर की वफादार होगी, अल्लाह ताला उन 70 हूरों की सरदार उसकी औरत को बना देगा। अरे तड़प के बोलो, 70 हूरों की सरदार वो औरत होगी जो अपने शौहर की वफादार होगी, शौहर की मोहब्बत पर खात्मा हुआ होगा, शौहर की वफादारी पर खात्मा हुआ होगा। और जो औरत अपने शौहर की का पैर बगैर कहे हुए दबाती है, तो जितने बार हाथ पैर पर रख करके उठाती है, हर बार रखने उठाने के बदले में अल्लाह तबारक ताला 70 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह बोलो। अरे इस्लाम ने कैसे औरतों का मकाम नहीं दिया है। आज गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है, ट्रेन पे लिखा है, रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन कर रहा है? सीएम जी कर रहे हैं, पीएम साहब भी कर रहे हैं, डीएम साहब भी कर रहे हैं, एसडीएम साहब भी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? आज कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? कोई हरियाणा से कर रहा है, कोई पंजाब से कर रहा है, कोई यूपी से कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश से कर रहा है, कोई दिल्ली के पार्लियामेंट से कर रहा है। मुझको कारी रईस ने बताया, मौलाना नूरी सुनो, आज दिल्ली के पार्लियामेंट से आवाज उठ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ये आवाज मदीना के पार्लियामेंट से रसूल कायनात ने 1450 साल पहले बुलंद किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जो इंसान ऐसा करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। जो इंसान ऐसा करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। आज समझ में आ रही है बात, आज समझ में आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह उठ करके फजर की नमाज पैदल पढ़ने जाया करो। पैदल हम नमाज पढ़ते ही नहीं, बड़ी परेशानी तो ये नमाज नहीं पढ़ते। मगर अब समझ में आ गया, बात समझ में आ नहीं रही थी मगर साइंस के दौर में समझ में आ गई। जब आदमियों को बीमारियां होने लगी, डॉक्टरों के पास जाने लगे, शुगर जैसी बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए और कहा डॉक्टर साहब शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, फलाना ढिमका, तमाम बीमारियां मुझको घेर ली। डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह उठ के 2 घंटे पैदल चला करो, सुबह सुबह उठ के 1-2 घंटा पैदल चला करो। मैंने कहा डॉक्टर तू
मैंने कहा पड़ा बुरा अमेरिका में कब आज बोल रहा है, अरे ये बोली तो मदीने के आका ने 1450 साल मदीना शरीफ में बैठ के फरमाया था। और मेरे मानने वालों, सुबह फजर की नमाज पैदल जाया करो मस्जिद पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी जानते थे जब मुसलमान पैदल नमाज पढ़ने जाएगा उसको शुगर नहीं सताएगा, उसको शुगर नहीं सताएगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं सताएगा। तो आप लोग अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लाह ने फरमाया जन्नत माँ के कदम के नीचे है। और जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, ऐसे माँ की दुआ बन अपने बच्चों के हक में कबूल हुआ करती है, अपने लालों के हक में कबूल हुआ करती है। तो आप लोग वादा कीजिए आज से इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, वफादारी करेंगे और सच्ची मोहब्बत करेंगे। वो लोग करोगे कि नहीं करोगे? सुभान अल्लाह। सब लोग करोगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल पक्का दावा है, पक्का सच्चा दावा है। इम्तिहान ले लिया जाए, कौन इंसान है ऐसा जो अपनी माँ के नाम पर, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है और उसका हक अदा करना चाहता है, अदा नहीं हो सकता मगर उस दूध की का लाज रखना चाहता है, और जो दुनिया में अपने माँ के नाम का रोशन करना चाहता है, अपने माँ से सच्ची मोहब्बत की निशानी पेश करना चाहता है। मैं अपने लिए नहीं, अल्लाह के रसूल के घर के लिए, रसूलुल्लाह के घर के लिए, उसके तामीर के लिए, प्लास्टर के लिए 1100 रुपये का ऐलान करता हूँ। देखता हूँ इसमें कितने अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले सच्चे नौजवान और मुसलमान मौजूद हैं जो ये कहते हैं मैं अपनी वालिदा से, माँ से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मौलाना नूरी मैं 1100 रुपया तामीरे मस्जिद और मदरसे में आपको देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह नारा लगाइए, आप लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सोनू भाई ने 2100 रुपया, मैंने तो 1100 कहा था, इन्होंने डबल कर दिया 2100। और इससे पता चला कि ये 1100 माँ के नाम पे दे रहे हैं और 1100 बाप के नाम पे दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। और हमारे भाई साहब क्या नाम है आपका? मलिक साहब। सुभान अल्लाह। हमारे मलिक साहब ने 1100 रुपया अपने माँ के नाम पर उनको फैजान पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐलान किया है। हम दुआ करते हैं मौला ताला इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। एक नौजवान और मजमे से चाहिए। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। सुभान अल्लाह, इनका नाम ही नूर मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नाम लिखिए कारी साहब। नूर मोहम्मद साहब 1100 रुपया तामीरे रसूलुल्लाह के घर के लिए दे रहे हैं, अपने माँ के नाम पे दे रहे हैं। ऐ माँ, रब तबारक ताला उस माँ का वास्ता जिस माँ के ताल्लुक से तूने फरमाया अगर बंदा सच्ची मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। उस माँ के नाम पर इन्होंने दिया है, अल्लाह कबूल फरमा। एक बंदा और चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जमील भाई 1100 रुपया दे रहे हैं और 6000 रुपया ये और दे चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर इन्होंने दिया है, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। 4 यार के नाम पे 4 लोग हो गए, मगर मैं चाहता हूँ पंजतनी माहौल हो जाए और एक नौजवान पंजतने पाक के नाम पर, अपने माँ के नाम पर, माँ की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। इनका नाम लिखो, आदिल साहब, मोहम्मद आदिल। ये इरफान भाई के साहबजादे हैं जो इरफान भाई मरहूम हो चुके, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए। अपने वालिद और वालिदा के नाम पर 1100 रुपया जनाब आदिल साहब दे रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। माहौल जो 5 लोग हो गए, पंजतनी हो गए, लेकिन आज 6 अप्रैल है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी है, इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि हम भारत में रहते हैं। तो ये किसी के बाप की देन नहीं, गरीब नवाज की देन है, ख्वाजा पाक की देन है। एक दीवाना और चाहता हूँ, एक मस्ताना और चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के छठी के नाम पर। सुभान अल्लाह। 2000
2200 सुभान अल्लाह। नाम रखिए। हमारे शफीक भाई 2200 रुपया 1100 माँ के नाम पर, 1100 बाप के नाम पर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये 2200 रुपया दे रहे हैं अपने वालिदैन के नाम पर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। कल मैदान क़यामत में अगर फरिश्तों ने सवाल किया कि माँ के नाम का ऐलान हो रहा था, ए दीवाना तू बैठा था, तू भी तो अपनी माँ का औलाद था, अपनी माँ का बेटा था, अपनी माँ का पूत था, आखिर तेरे अंदर गर्मी क्यों नहीं आई, खून में हरारत क्यों नहीं आई, दूध में मौजे क्यों नहीं लिया? तो उस वक्त माँ की ममता रुसवा हो जाएगी, माँ की मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। एक नौजवान मजमे से और चाहता हूँ ताकि 7 का अदब पूरा हो जाए और ये 7 आपको जो है करबला के मैदान में लेकर के जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो 7 नुफूस कुदसिया जो खानदाने अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं उनके नाम पर। सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये गुलाम रब्बानी है, अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे जमील भाई 1100 रुपया और ये दे रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये 7 लोग हो गए मगर हजरत अली की तारीख 8 है और मैं चाहता हूं कि वो 8 हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिन्होंने बाबे खैबर जिसको 40 दीवाने पहलवान खोलते और बंद करते थे, उनके नाम पर एक दीवाना खड़ा हो जाए कि हम हजरत अली के मानने वाले हैं। जहां पर अली का नाम ले लिया जाता है मुसीबत टल जाती है, अली का नाम ले लिया जाता है शैतान भाग जाता है, अली का नाम ले लिया जाता है दुख दूर हो जाया करता है, हादसात से बच जाया करते हैं। एक नौजवान मजमे में और होगा जो हजरत अली के नाम पे आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। ये 8 लोग हो गए, हजरत अली की तादाद पूरी हो गई। हमारे आरिफ भाई ने 1100 रुपया अपने माँ के नाम पर तामीर मस्जिद और मदरसा के लिए दिया है। कल मैदान क़यामत में अगर फरिश्ते इनसे पूछेंगे कि तुम बता आरिफ तू क्या लेकर के आया है, तो ये आरिफ बोलेगा, जमील भाई बोलेंगे, सोनू भाई बोलेंगे, हमारे ये मलिक साहब बोलेंगे, शफीक साहब बोलेंगे, मौला माँ के नाम पर चंदा हो रहा था, मैं रोजा नहीं लेकर के आया हूँ, नमाज नहीं लेकर के आया हूँ, हज और ज़कात नहीं लेकर के आया हूँ, माँ की मोहब्बत लेकर के आया हूँ, माँ की ममता लेकर के आया हूँ, माँ का प्यार लेकर के आया हूँ। मैं उसी माँ की मोहब्बत के सदक़े में हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 8 लोग हो गए मगर अशरे मुबश्शरा की तादाद 10 है। अशरे मुबश्शरा कहते ही इसलिए है उनकी तादाद 10 है और ये 10 सहाबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत दुनिया में दिया था। उनका नाम लिख करके घर में लटकाया जाए तो शैतान भागेगा, दुकानों मकान में बरकत होगी, खानदान में बरकत होगी, माल में बरकत होगी, अयाल में बरकत होगी और जो उन 10 से मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे। 2 नौजवान मजमे से और चाहिए, माँ के नाम पर, माँ की ममता के नाम पर, माँ की मोहब्बत के नाम पर औरतें भी हिस्सा लें, इसलिए कि फरिश्ते पूछेंगे तुमने सोने की बालें बनवाई थी, कहेंगे हाँ बनवाई थी। तुमने चांदी का हार बनवाया था, हाँ बनवाया था। तुमने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे जमील भाई ने 9 की तादाद पूरी कर दी। एक नौजवान अशरे मुबश्शरा के नाम पर चाहिए, कोई खड़ा हो जाए अशरे मुबश्शरा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे फूल मोहम्मद साहब, इनका नाम फूल मोहम्मद है। ये फूल मोहम्मद कितना प्यारा नाम है। अशरे मुबश्शरा की तादाद पूरी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गौस पाक की तारीख तो 11 है, गौस पाक की तारीख तो 11 है और इसी 11 के सदक़े में आज बाकी है क्या? मस्जिदों की मीनार, उनकी बुलंदियां, उनकी शोहरत। सुभान अल्लाह। इरफान भाई
1100 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इरफान भाई ने 1100 रुपया दे करके 11 वाले पीर की तादाद मुकम्मल किया है। लेकिन ऐ मुसलमानों, अगर एक है, एक की पहचान हुई है तो एक जात और है उसके सदक़े में। 11वीं की पहचान हुई है तो उसी जात के सदक़े में। अशरे मुबश्शरा की पहचान हुई तो उसी जात के सदक़े में, और उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी तारीख है 12। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे शफात भाई 12वीं वाले पीर की, 12वीं वाले नबी के नाम पर इन्होंने 1100 रुपया अपनी माँ के नाम पे दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये इसराइल भाई सुभान अल्लाह, 13 आदमी हो गए। सुभान अल्लाह, 13 आदमी हो गए। लेकिन जलसा गाजी पाक का है। किसका जलसा है? गाजी पाक का। और गाजी पाक की तारीख शहादत की 14 है। 14 रजबुल मुरज्जब को सरकार गाजी ने 18 साल 6 महीने की उम्र में हिंदुस्तान की सरजमीन बहराइच शरीफ के ऊपर शहादत का जाम पिया है। अरे उस मर्द मुजाहिद के नाम पे एक तो मांगता है ना, एक नौजवान तो चाहिए ना, चाहिए प्यारो, एक दीवाना तो उस गाजी के नाम पर चाहिए। कोई एक दीवाना उस गाजी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे जमील भाई सुभान अल्लाह, सारे लोगों का यही को पूरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये तारीख 14 हो गई, सरकार गाजी की भी तारीख आ गई, और अशरे मुबश्शरा की तारीख आ गई। अब मैं इसी पर ब्रेक लगाता हूं, और जिससे जो हो सके अपनी माँ के नाम पर 1 रुपया है वो लेकर के आओ, 2 है वो लेकर के आओ, अपने जगह पर बैठ जाओ। आज एक माँ की मोहब्बत का वास्ता है, माँ की मोहब्बत के इम्तिहान का मामला है। एक बेटे का इम्तिहान है, एक लाल का इम्तिहान है, एक पूत का इम्तिहान है। सिर्फ 1 रुपया से मुझे आगे की कोई कैद नहीं है। 1 रुपया से जितना चाहे आप हिस्सा ले सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया है जल्द से जल्द आए, हिस्सा ले। और हिंदुस्तान का अजीमुशान शायर कारी आबिद रजा साहब सरावस्ती को पेश करूंगा, जो अभी ये जादू बिखेरेंगे अपनी आवाज का। लोग सुनेंगे और झूमेंगे, ख्याल और तसव्वुरात में मदीना पहुंचेंगे। मगर माँ के नाम पर आ जाओ, अपने प्यारो, अपनी माँ के मोहब्बत के नाम पे आ जाओ। सिर्फ 1 रुपया का सवाल है। 1 रुपया से आगे जो चाहो, मैं कैद नहीं लगा रहा हूँ। जिससे जो हो सकता है, कल मैदान कयामत में अगर माँ ने कह दिया क्या बेटे मेरी मोहब्बत का सवाल था, क्या तेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, तू बैठा रहा, तो उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी, माँ की ममता जलील हो जाएगी। लिहाजा मुसलमानों, सारे जहां में एक औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मुनव्वर राना ने बहुत पहले कहा था, बहुत ऊंची हवेली हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। दोनों हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।